बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरगिस नाहिद एडवोकेट विद गैलेक्सी स्टार वन। तो ये आज हम यहाँ पे जो ये वॉक कर रहे हैं, ये डॉक्टर प्रोफेसर यास्मीन मेरे साथ मौजूद हैं और ये आपको बताएंगी। पहले तो अपना पूरा इंट्रो करवाएंगी। ये पाकिस्तानी कैनेडियन है माशाल्लाह, जीएमएस की उनकी हेड हैं। तो मैडम ये बताएंगी कि ये वॉक जो कर रही हैं इसका क्या मतलब मकसद है और ये क्यों चाहती हैं कि लोगों में ये सारी अवेयरनेस हो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि फ़ास्ट फूड बच्चियाँ जब खाती हैं, बच्चे क्या बच्चियाँ का सभी खा रहे हैं, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बीइंग डॉक्टर ये महसूस करती हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने तमाम जो हमारे यंगर हैं उसमें कोई डॉक्टर को स्पेशल नहीं है, को सारे जितने भी हमारे यंग मेल फीमेल बच्ची हैं उन सबको हम ये अवेयरनेस दें कि इसका कितना नुकसान है। तो डॉक्टर साहब गैलेक्सी स्टार वन की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। अपना तारुफ भी करवाइए और ये बताइएगा कि ये इसकी आपने क्यों ज़रूरत महसूस की और ये कब से यह काम कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया एडवोकेट नरगिस नाहिद साहिबा। आई एम प्रोफेसर यास्मीन, वेरी ऑनर्ड टू कम बैक टू पाकिस्तान। There's a voice. To come back to my own native land after 32 years. अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात पाक का जो हमें पाकिस्तान लेकर आई। जब हम कोशिश करते थे तो कुछ बन नहीं पा रहा था। जब हम प्लान नहीं कर रहे थे तो मेहरबानी कोविड की, कोविड केम टू अस एज अ ब्लेसिंग। तो जब मैं पाकिस्तान आई तो उससे पहले ही कोविड के दौरान स्टूडेंट बॉडी इन कनाडा, द आइडिया ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस स्टेम्ड फ्रॉम Ottawa, the capital of Canada, and then spread to all across Canada, from there to Toronto, Vancouver, and Hamilton, and in many other countries. That how to bridge the gap between developed and underdeveloped countries. To bridge the gap between developed and underdeveloped countries through education, training, and skills. The GMS stands for the Global Gohars Medical Service Solutions Canada. It's registered in Pakistan as well. It is not an NGO, sir. It's not on donation dependent. It's a non-profit, and it has taken its foundation is based on passion of our young youth nation being collaborated and supported by many patriotic organizations who are participating in development of Pakistan. Like the first name comes the Chughtai Health Care and Education. They are our collaborator, supporter, and they gave me Central Park Medical College as a platform for all educational activities. Then came Punjab University, the biggest platform, our external link, Ms. Sobia Khurram, and then several, Allama Iqbal Medical College, Tintash, Cancer, Labbaik Center, and the health and fitness, Mr. Tanzeel owns Kasrat, and then Valencia Layer Club, where I live close to that in UAT societies. Fatma Jinnah Medical College, and many of my friends gynecologists. I'm so grateful. Recently, we were able to collaborate with Pakistan, Punjab government chairperson, Mrs. Safia Ishaq, a very big name in the social club. Right. I am very proud of सबने black पकड़े हुए हैं. So Mrs. Safia Ishaq is one of the 3 atomic energy leaders out of Dr. Qadir and Dr. Ishaq and Dr. Samar. Then the next one is she introduced when I launched my platform just next door in the PC, most of our programs, and in the Nishat Hotel, where my right-hand person, I do not see the Saima Tabassum, who were my beginners, friends, Mrs. Binish Shaukat, who always in a 5-minute call, she will bring all her beautiful friends
and supported. That gave us the hope that we can work in Pakistan. और हमारे जो youth हैं, और especially I would mention about Professor Fahad Wadaich, who is the internationally known eminent endocrinologist, who came all the way from Los Angeles to serve Pakistan. There are few more, Tahir Yunus from Evercare, to whom I know, Dr. Atiq and Dr. Ishtiaq, Dr. Ishaq. So we are the team of doctors who want to serve Pakistan. We expect from our native supporters, our friends, Pakistanis, that please, please support us. We are not looking for money. We are not looking for any benefits for our personalities. What we look for is for Pakistan. Please make our homeland free and happy and developed nation. Thank you so much. सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, थोड़ा सा आम ऊपर उठा के ये अभी हम ये वॉक करेंगे, ये इसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है. तो मैडम से सिर्फ थोड़ा सा मैं ये चाहती हूँ कि आम सादा लफ्ज़ों में PCOS का मतलब बताइएगा, जिसके लिए हम ये अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं. क्योंकि ये हमारा चैनल सिर्फ डॉक्टर्स ने और बहुत पढ़े लिखे लोगों ने नहीं देखना, उन लोगों ने भी देखना है जिनको समझ आनी चाहिए. तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब वैसे यूज टू है बहुत ज़्यादा, जाहिर है कि डॉक्टर्स हैं, वो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, ये वो सारी चीज़ें. तो डॉक्टर साहब ये PCOS जो है, एक जो डॉक्टर साहब भी बोल सकती हैं, जो PCOS से ये इसके लिए अवेयरनेस आपने क्यों दी और ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा आप मुख्तसर बताइएगा, फिर हम वहीं पे सारी बात करेंगे और वॉक भी करेंगे, प्लीज़. Thank you very much, Nahid. Before I tell you, one of my friends, she said, what is PCO? This is Professor Shahnaz Malhi, a very eminent national and international figure, and she is a professor at NCA. She said, I said, you tell me. She said, I think it's a public call office. उर्दू में बताना. अच्छा, तो PCO का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी. ये इसलिए हमने चूज़ किया सबसे पहले क्योंकि ये हमारी यंग यूथ को, लड़कियों को, यंग बच्चियों को बहुत ज़्यादा एपिडेमिक की तरफ अफेक्ट कर रही है. ओवर द लास्ट 10 years ये इसका इंसिडेंस है ऐसे है कि आउट ऑफ 10 हर 4 से 5 और 6 तकरीबन लड़कियां अफेक्ट हो रही हैं. उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है इस वक्त, इंडिया एंड बांग्लादेश, एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. अब है क्या चीज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी? इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है. सादा लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगी कि आपकी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं और मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं. जबकि आम हेल्दी लड़कियों में जिनको PCO नहीं है, उनमें मेल हार्मोन होते तो हैं बट बहुत थोड़े होते हैं. लेकिन ये क्यों होता है मैडम, थोड़ा सा ये मुख्तसरन बताइएगा. जी, ये एक्चुअली स्टडीज़ ने आफ्टर द लास्ट 2 decades में ये डिस्कवर किया कि लाइफस्टाइल आपका बहुत ख़राब है. डाइट आपका जो है, ये बर्गर जनरेशन, पिज़्ज़ा एंड ईटिंग फास्ट फूड, केक, पेस्ट्रीज. Remember, high fat, high sugar, high salt. The corrupt industries will never talk about it. But under this, absolutely. So, उसकी वजह से दूसरी मेन वजह जो है वो है इसकी कि हमारा जनरेशन ऑफ मोबाइल्स, इंटरनेट, नेटवर्क, आइसोलेशन, सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, खाते रहे, बैठे, सो गए, वहीं पे मोबाइल के साथ उठे, मोबाइल के साथ ही सोए. दिस इज़ द मेन रीज़न. तो इसीलिए हमने यहाँ पे लेके चलें. सो रिमेंबर द 2 मेन रीज़न इज़ द न्यूट्रिशन एंड द फिज़िकल एक्टिविटी. द थर्ड इज़, विच इज़ वेरी स्मॉल कंपोनेंट, दैट इज़ जेनेटिक्स. आपकी माँ को था PCO, आपकी मदर को था CPO, आपके बेटियों को हो गया, बहनों को हो गया. सर, हमने इधर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट आज बुलाए हैं. ये हो क्या जाता है PCO में? आप कहेंगे क्या होगा? मोटा हो जाता है जिस्म, दाने निकल आते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, मुहासे, फिंसियाँ. और बच्ची जब 15 साल की शीशे में अपने आप को देखती है, बाकी लड़कियां खूबसूरत हैं, वो मोटी है, उसके पीरियड्स कभी आते हैं कभी नहीं आते, बच्चियों को इतनी आगाही नहीं होती, वो डिप्रेशन में, आइसोलेशन में चली जाते हैं.
और उसकी वजह से क्या होता है, स्कूल की परफॉर्मेंस, सबसे पहले स्कूल की परफॉर्मेंस ख़राब होती है। अब जब इनकी शादियां होती हैं तो बच्चे नहीं होते, क्योंकि ओवरीज जो हैं वो अंडे नहीं बनते, तो बच्चा कहाँ से होगा। जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं उस वक्त तक वो 20 जगहों पे जा चुके होते हैं, क्वैकरी, ब्यूटिशियन, लेज़र, डर्माटोलॉजिस्ट, और इतना बेतहाशा पैसा खर्च करने के बाद कोई उनको डर्माटोलॉजिस्ट जो नेक बंदा होगा वो रेफ़र करेगा कि आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। तब तक डैमेज इतना हो चुका होता है, मोटापा इतना आ जाता है, पीरियड्स इतने हो जाते हैं औरतों की, बच्चियों की, इस सारे जर्नी में एज 35, 37, 38 हो जाती है, जहाँ पे उनका रिप्रोडक्टिव कैरियर पूरा रिस्क पे होता है। बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती, जब वो 40s में पहुँचती हैं PCO वाली, दे आर एट मच हायर रिस्क ऑफ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, और सतम ज़रीफ़ी देखिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस कैन एक्ट ऑन द यूट्रस एंड कैंसर डजंट स्पेयर दीज गर्ल्स। सो आज का जो टॉपिक है ना सर, बहुत ज़्यादा तवज्जो का मोहताज है। हमने इस वॉक के बाद ये प्लान किया है हेल्थ सेमिनार, जिसमें प्रोफेसर फ़रीद, प्रोफेसर शमसा हमायूं और बाकी मेडिकल के प्रोफेशन जो है ना वो हिस्सा लेंगे, और फॉरम ओपन होगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। और ये जो कलर है सर, आप पूछेंगे कि ये सब ने टील कलर क्यों पहना है। जी। हमने ये WHO के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली सितंबर का फर्स्ट वीक है, बट हम इसको प्राइम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा प्लान है पूरे मुल्क में PCO की कैंपेन चलाने का, जिसमें एवर केयर, हमीदा मेमोरियल एंड नरगिस जहाँ पे भी कहेंगी, गली मोहल्लों सब में करेंगे PCO का। तो PCO का कलर है टील कलर, सब ने आज पहने हुए हैं खूबसूरत टील कलर। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम PCO को फाइट करेंगे, क्योर करेंगे। आज हम सब मिलके अहद करेंगे कि क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, क्या अहद करेंगे। हम अपनी हेल्थ के लिए अच्छे पैगाम, हम अपनी हेल्थ को खुद भी केयर करेंगे और बच्चों को भी आज सबक ये देंगे कि अच्छी हेल्थ के लिए एक तो वॉक, एक एक्सरसाइज और एक अच्छा खाना, ये अगर आपने अपना लिया तो सारी ज़िंदगी आप इसी तरह ही एवरग्रीन रहेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब थोड़ी सी वॉक भी करते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि मेरे साथ बहुत ही यंग ब्यूटीफुल गर्ल जो कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं, मिस फरिया मेरे साथ हैं। वैसे फरिया के बड़ा अच्छा ज़ौक है, हमेशा बड़े खूबसूरत कपड़े पहनती है। आज भी उन्होंने इस इवेंट के लिहाज से बड़ा प्यारा एक सूट पहना हुआ है। तो अच्छा, वैसे मैंने अक्सर मैंने ड्रामों में आपने देखा होगा, बहुत चार्मिंग लड़कियां हैं और वो बिज़नेस कर रही हैं, लेकिन मैंने लाइव भी देखा है फरिया को। तो फरिया हमारी बहुत प्यारी, हमारी बहन भी हैं, छोटी है, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। आज स्पेशली इन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत भी की है और अपना बहुत ही अच्छा एक पार्टिसिपेशन किया है, अपना पूरा हिस्सा डाला है। हाँ, तो फरिया कैसा फील कर रहे हो, और ये कि आप भी अपने तौर पे, क्योंकि मैं समझती हूँ आप भी जैसे यंग गर्ल्स में, जैसे आजकल वो मैडम ने बताया, मैं थोड़ा सिंपल करके बता दूं कि आम तौर पे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये शवारमे हैं और बच्चियां इसके बगैर तो सोचती नहीं है। सुबह माएँ जब उठती है तो घर में देखती हैं तो वो बाहर फूड पाना के डब्बे सारे पड़े हुए होते हैं, बच्चे खा रहे होते हैं। चलिए ठीक है, कभी कभी चस्के के लिए तो ठीक है 2 बजे तक, लेकिन बहरहाल इसको आप अपनी आदत मत बनाइए कि खुदा न खास्ता आप ये देखें ना कि जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो कितना नुकसान होता है बच्चियों का। लॉन्ग टाइम उनकी शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे नहीं होते, ओवरीज में प्रॉब्लम होती हैं। तो आप इसमें ये कि फ्रिया बताएंगी कि फ्रिया इसके लिए क्या करिए। जी फ्रिया, आपको गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से खुशामदीद है और आपको वेलकम है, और ये बताइएगा ज़रा आज का इस प्रोग्राम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, एक तो इतना अच्छा तारुफ़ कराने का, और आज इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि हम हमेशा ब्लेम अपनी यूथ को करते हैं कि वो ये नहीं कर रहे, वो अच्छा खाना नहीं खा रहे, वो अच्छी रूटीन नहीं गुजार रहे, उनकी कोई रूटीन नहीं है, उनका मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। तो हम यूथ को ब्लेम क्यों करते हैं? आज मेरा ये सवाल है कि हमने यूथ को ब्लेम क्यों किया, और आज ही मेरा इस सवाल का जवाब मिल गया कि हमारे बड़ों ने हमेशा हमें रास्ता दिखाना है, हमारे बड़ों ने हमेशा हमें उसका सलूशन देना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर यास्मीन को बहुत अप्रिशिएट करूँगी इस बात पे कि इतना ग्रेट इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि यूथ को ये एक सही रास्ता दिखाने जा रही हैं, जो कि यूथ हमारी
बिल्कुल ऑफ ट्रैक हुई हुई थी, उनको पता ही नहीं था। हेल्थ एंड वेलनेस बहुत अच्छा कैरेक्टर इस पे प्ले कर रहा है कि आप उनको ये बताना ज़रूरी है कि उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, हेल्दी ईटिंग क्या होनी चाहिए, उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए, उनके सोने का, उनके जागने के क्या टाइमिंग्स होने चाहिए। तो हमारा ये सारा सिस्टम जो बॉडी का ख़राब हुआ हुआ है, ये हमारी गलत रूटीन की वजह से और गलत ईटिंग हैबिट्स की वजह से हुआ हुआ है। तो आज मैं बहुत मुबारकबाद आपको दूंगी इस बात पे कि आपने इतना ग्रेट इनिशिएटिव लिया। देखें, किसी ना किसी ने पहल तो करनी थी। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक इन दिस नोबल कॉज कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और हम सब आपके साथ हैं। Thank you. बहुत ज़्यादा शुक्रिया फ्रीहा, यू आर द रियल लीडर एंड शी इज़ एंटरप्रेन्योर, लीडरशिप एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आई वुड से थैंक डॉक्टर एंड डॉक्टर राकिब जी उनसे भी सुन लेंगे जी। और बिफोर इसके कि हम प्रोसीड करें, आई विल से कि नज़रिया पाकिस्तान के चेयरपर्सन निसार साहब, वाइस चेयरपर्सन मियाँ अल्ताफ़ साहब, बेगम सफ़िया, उनका तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन कराया है, और सैफुल्ला चौधरी गिल एंड उनकी पूरी टीम। एंड फ्रॉम द चेंबर ऑफ कॉमर्स, आई थिंक Freeha has shown us, made our entry possible in Chamber of Conference. Right to the leadership of Mr. Kashif, President, the Vice President, Senior Vice President, अदनान है, ज़फ़र चौधरी साहब हैं और इनकी पूरी टीम। इनके एक और कोलैबोरेटर हैं जो कि हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द हेल्थ कोच हैं, अली मुर्तज़ा। वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू कम एनी टाइम। और इस सारे में इंटरफेथ सेंट्रल पार्क वाले डॉक्टर चुगताई हेल्थ एंड एजुकेशन में, और आवर पार्टनर डॉक्टर फरीद ज़फ़र, सबका बहुत शुक्रिया। बिनिश शौकत, फरखंदा जी एंड डॉक्टर राकिब आए हुए हैं, जी। वो जरा उनसे डॉक्टर साहब प्लीज़ कम फॉरवर्ड जी, बिकॉज PCO अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ ऑफ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राकिब है और मेरा ताल्लुक़ बेसिकली जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से है, लेकिन मेरी जो फील्ड है वो साइकेट्री, उसको मेरा पर्सनल जो फील्ड है। तो इसमें मुझे आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है इस फोरम पर आके और इस एक्टिविटी में शामिल होके कि ये एक इस वक्त हम सब का, ये हर घर का ये इस वक्त इशू बन चुका है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई भी एक हमारा इस आजकल मौजूदा दौर में कोई भी घर होगा जिसमें एक या दो हमारी घर के अंदर कोई फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस ना कर रही हों। तो ये एक बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत थी, सो दैट कि इसकी अवेयरनेस आए और लोग इसको एक कोई अपने लिए कोई स्टिग्मा या कोई अपने लिए कोई बदनामी की चीज़ नहीं, बल्कि एक बहुत ही क्योरेबल चीज़ है जिसको कि हम लोगों को इसको ट्रीट करने की बस ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इट इज़ अ ट्रीटेबल प्रॉब्लम। And I'm feeling very much happy and proud to be part of this activity. Thank you. हमारी बड़ी प्यारी फ्रीहा जिंदाबाद और हमारे सारे प्यारे गेस्ट। अच्छा, मैं बहरहाल ये कि जो जैसे हमारे दोस्त आते जाते हैं सबको वेलकम कहती हूँ, सबको वेलकम कहती हूँ।
और आहिस्ता आहिस्ता सबका इंशाल्लाह ताला ऊपर बैठ के सबका बेहतरीन तारुफ होगा। उसमें हमारी बच्चियों ने बड़ा काम किया है। डॉक्टर अमीमा वो खड़ी हुई है, बेटा इधर आओ। ये डॉक्टर अमीमा हैं जी। ये बच्ची माशाल्लाह बहुत इन्होंने वर्क किया है इसमें। ये इधर डॉक्टर माहम खड़ी हैं, डॉक्टर अरसलान खड़े हैं और हमारे जो बच्चे बच्चियां डॉक्टर हैं और कहीं किसी शोबे से भी उनका ताल्लुक़ है। हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये बच्चियां देख के हमें अपने स्कूल का ज़माना याद आ गया बेटा। हम भी कभी ऐसे वो ग्रीन हमारे और क्या बैड लगे होते थे। डॉक्टर समीना बुशरा मेरे साथ खड़ी हैं और अच्छा मैडम फातिमा साथ खड़ी हैं, मैडम राजिया खड़ी हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबे सैयदना मोहम्मद व आलिहि व सहाबी बारिक सल्लम। प्यारे, बहुत प्यारी बच्चियों, बहनों, आज आप ये नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट आई हैं। किस लिए? ये बहुत अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को सेहतमंद बनाने के लिए। इतनी मसीहा हमारे दरमियान है कि हम उनका शुक्रिया किस तरह अदा करें। ये मसीहा हैं, ये बीमारियां दूर करने, दुख रंग, और उनमें से ख़ास चंद लोग आए हैं। आप वहाँ पे हॉल में इंशाअल्लाह ताला उनसे मुलाकात करवाएंगे। आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, चाहे दुश्मन हज़ार हमारे पीछे पड़े, लेकिन तरक्की करेगा। और ये तमाम हमारी बच्चियाँ, कोई प्रॉब्लम हो, वो जो डॉक्टर आई हुई हैं कनाडा से, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस वतन की खिदमत। ए वतन, हमने तो तुझे चाहा ही नहीं है चाहने वालों की तरह, लेकिन अब एहसास होता है कि नहीं, चाहने वाले भी बहुत हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान ने तरक्की करनी, बहुत ऊंचा जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये 14 अगस्त की एक्सटेंशन है। दैट्स वाई हम सब ने ये ग्रीन कपड़े और ये बैज और ये तमाम खूबसूरत ये कलर जो हमने पहने हुए हैं। वैसे तो पाकिस्तान के सारे रंग ही, पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, रोशनी और रंगों की लहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो। तो बाकी दूसरी बात ये है कि हम सब कश्ती निकाल कर रखना से लाए हैं, ये कश्ती निकाल कर को रखना मेरे बच्चों संभाल कर, हमारा है तुम हो पास। ये भाई हम अपनी यूथ के लिए कह रहे हैं, ये वतन तुम्हारा है। हाँ और क्या बताओ, पास